So, hello everyone. Um, for a lot of days, I've been thinking, what should we be talking about today? And many of you gave a lot of suggestions, and I thought, should I pick up something from there? So, one request or suggestion, should I say, really intrigued me is things are not always as they seem, and we make a perception or a decision or an opinion on things the way we see them. So today we are going to be talking about this. So like you can see, we are out there in the sun. It's really sunny today and very bright. So probably I'm going to be squinting half the time because the sun is right in my eyes. I'm trying not to squint, but still this is getting dark. Yeah. So what I want to talk about is that why don't we see the other side? No, it's not exactly why we don't see the other side. It's like there is a second side to everything, and before we make an opinion, we do need to look at the other side also of every opinion, of everything that happens. And to start off with, I came across a very sweet kind of tweet on my timeline that said, let me just describe you the scene. Okay, I'll just show it to you. So the scene is that there is a Grim Reaper. You know what a Grim Reaper is? Grim Reaper, Yamraji. No, not Yamraji, Yamdoot. Yamdoot. The one who takes away the souls when somebody dies. So हम हमेशा उनको एक बहुत नेगेटिव लाइट में प्रेजेंट करते हैं. हम हमेशा ये कहते हैं यमदूत आ जाएगा, यमराज जी आ जाएंगे तो वो क्या करेंगे, क्या होगा. लेकिन कभी किसी ने सोचा बेचारे को इतना नेगेटिव लाइट में शो कर रखा है सबने, सब लोग उससे डरते हैं, बट उस पर क्या बीतती होगी? हाउ वुड ही फील? सो इसमें बड़ा अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा लिखा था कि देयर इज दिस ग्रिम रीपर, ही इज़ गॉट अ placard around his neck saying, I need a hug. And on top of it, it's written, somebody had expressed a thought saying, I don't understand why everyone makes the Grim Reaper out to be a bad guy. I mean, he's just taking you to the afterlife. It's not like he's the one who killed you. Imagine if you had to go alone. It's actually quite nice of him to walk with you. So that is the thought कि वो भी तो अपना काम ही कर रहा है ना. अब उसने अगर अपना काम नहीं किया तो क्या होगा? क्योस, कन्फ्यूजन कितना हो जाएगा. सो उसका क्योस और कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए वो अपना काम कर रहा है एंड एक सिस्टम को चला रहा है, चल रहा है. ही इज़ अ पार्ट ऑफ द सिस्टम, ही इज़ डूइंग समथिंग. एंड तो फिर उसको क्यों बुरा कहना? उसने तो नहीं अपनी मर्ज़ी से तुमको लेकर जाना, उसका तो काम है. अगर वो लेकर जा रहा है तो ही इज़ डूइंग हिज जॉब. आई नीड टू सिट डाउन समवेयर. सो ही इज़ डूइंग हिज जॉब, काम कर रहा है बेचारा अपना, तो फिर उसको इतना बुरा क्यों कहना? तो इसी तरह से
जब हम कोई ओपिनियन बनाते हैं, जब हम कोई सिचुएशन देखते हैं अपने लाइफ में, अपने आसपास किसी के साथ भी, कोई भी है, किसी को हम जानते हैं नहीं जानते हैं, किसी को अच्छा सोचते हैं किसी के बारे में, किसी के बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं, तो वो जो ओपिनियन हम बना लेते हैं ना बिना ये सोचे कि भाई दूसरा साइड क्या है, वो बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। वो हमें ऐसे लगता है कि बस हमें पता है, हो सकता है हमारा पर्सपेक्टिव है, हमने ऐसे सोचा, लेकिन हमने दूसरी तरफ नहीं सोचा कभी कि उसको कैसा लगता होगा। सो what we are trying to talk about over here, what we are trying to reach the point over here is कभी भी किसी के बारे में ओपिनियन नहीं बनाएं जब तक हमें उसकी सारी सिचुएशन को हमने देखा और समझा नहीं है। जब हम एक तरफ का ओपिनियन बनाते हैं ना, when we make an opinion of one side and we say I know everything, well sorry to say you don't know anything. So पहले बात को समझें और उसके हर एक एंगल को एनालाइज करें, सोचें कि इस सिक्के का दूसरा पहलू भी तो है, there's a second side to this coin. So पहले उसको देखें। किसी ने अगर कोई गलत काम किया तो वो गलत काम उसने क्यों किया, किस वजह से किया, उसका क्या रीज़न रहा होगा। ठीक है, गलत, आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम नॉट जस्टिफाइंग द रॉन्ग एक्शंस ऑफ एनीवन, बट व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम ट्राइंग टू do an analysis of it, of anything, that before we make a judgment on someone, before we judge someone, it's always better to think first as to why this thing happened, why did this person do something, क्यों किया ऐसा। और उसके बाद भी अगर तुमको लगता है कि नहीं भाई ये तो गलत है, तो ठीक है ना, तो ठीक है, वो तुम्हारा ओपिनियन है, वो गलत है, लेकिन बिना हर पहलू को, हर एस्पेक्ट को समझे किसी को दोषी करार नहीं दो। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आई वुड लाइक टू टेल ऑल माई यंग फ्रेंड्स कि प्लीज़, हम बहुत जजमेंटल सोसाइटी में रहते हैं एंड वी शुड नॉट बी अ पार्टी टू दैट, क्योंकि जिसके ऊपर बीत रही है, जिसके ऊपर जो बंदा उस सिचुएशन के से गुजर रहा है, दैट पर्सन only knows where it hurts. Like, you know, they say only the wearer knows where the shoe pinches. जिसके ऊपर बीत रही है उसको ही पता है, तो उसकी तकलीफ़ों को और ज़्यादा ना बढ़ाएं एक जजमेंट देकर। और आपसे जजमेंट मांगा किसने? मतलब हम लोग ना एक ऐसी सोसाइटी में बैठे हैं जहाँ पे हम तैयार बैठे हैं, बस किसी ने कुछ किया नहीं और हमने ओपिनियन बनाया नहीं और हमने बोलना शुरू कर देते हैं। उससे मतलब क्या, आप हमारे इतना लाउड होने से, हमारा इतना सब कुछ लोगों के बारे में गलत कहने से क्या वो सही हो जाएगा? नहीं ना, जब हमें पता ही कुछ नहीं है तो। सो इसलिए सोचो, पहले सोचो, थिंक बिफोर यू ओपन योर माउथ टू क्रिटिसाइज समवन, टू पास जजमेंट ऑन समवन। अब कोई अगर जिस किस्म से बिहेव करता है, कोई अच्छा बिहेव करे, कोई गलत बिहेव करे, या वो उसका अपना तरीका है ज़िंदगी जीने का। आप बताइए, यू टेल मी, इफ़ somebody enforces their opinions, their decisions on you, will you like it? No, you won't. So don't pass judgment on others.
You know, I had read somewhere, and it's a very popular, very famous line. They say, do unto others as you want others to do to you. जैसा आप चाहते हैं दूसरे आपके साथ करें, अब वैसा दूसरों के साथ करिए. क्या आप चाहते हैं कि सब आपको जज करें? Do you want people to criticize you at every point? Do you want people to question every motive of yours? नहीं, बिल्कुल नहीं. तो फिर क्यों हम दूसरे को जज कर रहे हैं? क्यों हम दूसरे के मोटिव्स को क्वेश्चन कर रहे हैं? When everyone is doing something, they're doing it for a reason. Like the other day also I talked about this thing, that we are all here for a reason. अपने काम से काम रखें ना. एक बड़ी अगेन मैं बहुत सारी ऐसी बातें जो बहुत कॉमनली बोलती होती हूँ, एंड वन ऑफ देम इज माइंड योर ओन बिजनेस. इट सेज इट ऑल. If every one of us minds our own business, अपना काम करें विदाउट बॉदरिंग कि दूसरा क्या कर रहा है, ये दूसरा जो कर रहा है वो अपनी समझ से बहुत अच्छा कर रहा है, हमें उससे क्या? इज इट अफेक्टिंग अस? नो, बट वी हैव टू से, वी हैव टू हैव एन ओपिनियन. फिर दूसरे के काम में क्यों टांग अड़ाना है भाई? सो मत करो, ये काम तो मत करो. सो इट्स ऑलवेज बेटर कि बस अपना करो, अपनी समझ से करो, अच्छा करो, एंड सी टू इट दैट इट डजंट हर्ट एनीवन एल्स. सिंपल. दैट्स एंड लेट मी टेल यू, जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी. मतलब हमें क्या पड़ी है कि हम दूसरे के उसमें टांग अड़ाएं. माइंडिंग और बिजनेस का मतलब ही क्या होता है? अपना काम करो बस. और जब हर कोई अपना अपना करता है ना, तो दूसरे के बारे में सोचने की, परवाह करने का समय ही नहीं रहता है. और जब वो समय नहीं रहेगा तो हमें जज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना जजमेंटल होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना. सो मत हो, वो करो जो तुम चाहते हो, और दूसरों को भी करने दो. हम पता है, हम इतनी हिपोक्रिटिकल सोसाइटी में रहते हैं. हम कहते हैं तुम जो कर रहे हो वो तो गलत है, लेकिन और तुम्हें वो करना चाहिए जो हम चाहते हैं. हर कोई ये कहता है, हर कोई ऐसा सोचता है. अब हर कोई अगर ये कहे कि मेरे हिसाब से चलो, तो फिर तो कोई नहीं चलेगा. नोबडी विल बी एबल टू वॉक एनीवेयर और डू एनीथिंग. सब इसी में अटके रहेंगे. एक ना क्लास 12 CBSE बोर्ड में एक इंग्लिश के कोर्स में देयर इज़ अ पोएम called titled Keeping Quiet by Pablo Neruda, where the poet says that let's all keep quiet for some moments and introspect within ourselves. अपने अंदर झांक कर देखिए कि हम क्या कर रहे हैं. अपने अंदर देखिए कि हम कितने सही हैं. और जब हर कोई अपने अंदर देखना शुरू करता है, अपने अंदर झांकना शुरू करता है, when we start looking at within ourselves, we realize how right or wrong we are, and we take action accordingly. So वो पोएम जो है ना, when I would teach that poem in my classes, every time this thought would come to me कि सोसाइटी कितना दूसरों के बारे में सोचती है, लोग कितना दूसरों के बारे में सोचते हैं. अगर उतना वो अपने बारे में सोचे तो ज़िंदगी कितनी खुशहाल हो जाएगी, खुश हो जाएगी, है ना. लाइफ वुड बी सो हैप्पी. And there will be no sadness, no troubles anywhere in life. Because you know what? I don't believe in a very complicated, I don't believe in a complicated life.
यार ज़िंदगी में और बड़ी उलझनें हैं, दूसरों की उलझनों को भी अपने ऊपर ले लो, क्या मतलब? ठीक है, मतलब इफ़ यू रियली आर इन टू टॉर्चरिंग योर सेल्फ एंड यू वॉन्ट टू ट्रबल योर सेल्फ फॉर अ लॉन्गर टाइम, तो करो, करो अपने आप को टॉर्चर। पर लेकिन सोचो, मतलब अपनी, सिर्फ अपने तक काम रखो। हमें क्या पड़ी है दूसरा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। सो जजमेंट नहीं चाहिए, ये मत करो। और ये मैं आप सब, ऑल माई यंग फ्रेंड्स जो हैं, मैं उन सबको ये बात कह रही हूँ कि बी कॉन्फिडेंट अबाउट वॉट यू आर डूइंग, बी श्योर ऑफ वॉट यू आर डूइंग, बट डोंट जज द अदर पर्सन। डोंट से कि भी मैंने जो किया वो तो सही था, मेरे किया तो सही हुआ, लेकिन दूसरा अगर वही काम कर रहा है तो वो गलत है। ऐसा नहीं करो। When you start looking within yourselves, you will see that there's so much of inner peace. इतनी अंदर से शांति मिलती है अपने अपने आप को सही करके, अपने काम को सही करके, कि हमें दूसरे को देखने का, उसको जज करने का समय, मौका ही नहीं मिलता। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है लाइफ में कि अपनी मर्ज़ी का करो और अपनी एबिलिटी के हिसाब से करो। एक कंपटीशन मत करो, दूसरा क्या कर रहा है मुझे भी करना है। अरे ज़िंदगी की सबसे बड़ी तकलीफ ही ये है, उसके पास वो क्या बोलते हैं, वो एक ऐड आया करती थी बहुत ज़माने पहले, शायद बहुत ज़माना पहले, मतलब काफ़ी कुछ सालों पहले, सर्फ की ऐड नहीं, रिन की ऐड आया करती थी। रिन बार, वो जो कपड़े धोने वाला साबुन होता है, जिसमें बोलती थी इसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफ़ेद कैसे। ओह अच्छा, बस प्रॉब्लम वहीं शुरू हो गई कि भाई तेरी साड़ी क्यों सफ़ेद है, तेरे कपड़े क्यों सफ़ेद है। अरे ठीक है यार, तुम्हारे कपड़े सफ़ेद ज़्यादा नहीं है तो क्या हो गया, अगली बार साफ़ हो जाएंगे, ज़्यादा सफ़ेद हो जाएंगे। Why do you want to compete so much in your life that you make your life miserable? Don't do that. है ना? मतलब तुम्हें ऐसा क्यों मिला, तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हारे को इसका इतना फ़ायदा क्यों हुआ। अरे भाई हुआ तो हुआ, तुम भी कर लो अगर तुम्हें इतना है तो। पर अगर नहीं है, अगर तुम नहीं कर सकते हो तो खुश रहो। वो कहते हैं ना, बड़े बड़े संत महात्मा कहते होते हैं, है ना, कि जो है, जितना है उसमें सैटिस्फाइड रहो। बड़ा मुश्किल है वैसे, बट वो जो जजमेंटल सोसाइटी में हम रहते हैं ना, उस हिसाब से अगर हम जज इतना करते हैं लोगों को, तो फिर खुश रहना तो इम्पॉसिबल हो जाता है। तो ये एक स्टेप, बहुत सारी चीज़ें हैं। इट्स नॉट जस्ट बीइंग जजमेंटल और बीइंग अनहैप्पी और बीइंग डिससैटिस्फाइड। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक चीज़ जो होती है वो अपने आप को अपने अंदर से साफ़ करनी होती है, उसको क्लीन करना होता है। तो एक ये है, पहले जजमेंटल जो हमारा थॉट बिहेवियर है ये निकालें। हर किसी को एक ओपन माइंड से देखें कि अगर कोई ऐसा कुछ कर रहा है जो हमें पसंद नहीं है तो ठीक है, वो हमें पसंद नहीं है, पर हमें कोई राइट नहीं है, वी डोंट हैव एनी राइट टू क्वेश्चन दैट पर्सन कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। किसने दिया हमको ये राइट? हम कोई पुलिस हैं, हम कोई लॉ मेकिंग अथॉरिटी हैं, हम क्या हैं? मतलब खुद ही हम उसको क्या बोलते हैं, इल्ज़ाम लगाने वाले भी बन जाते हैं, और फिर खुद ही हम उसके जजेस भी बन जाते हैं, खुद ही हम उसका लॉ मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन भी बन जाते हैं, और खुद ही हम उसको सज़ा भी दे देते हैं। ऐसा थोड़ी ना होता है। और जब अपनी बारी आती है तब हमको लगता है बड़ा अनजस्ट है जी, सोसाइटी बड़ी ख़राब है जी। सोसाइटी क्या चीज़ है? सोसाइटी है क्या? मतलब
पीपल, एंड हर कोई अपने लाइफ में इतना परेशान है, इतना फंसा हुआ है, किसी के पास इतना समय नहीं है. नोबडी इज गॉट द टाइम टू वरी कि दूसरा क्या कर रहा है, लेकिन हम फिर भी कर रहे हैं. हम खुद, दूसरा करे ना करे. अभी मैं तब से मैं ये बात बोल रही हूँ कि सोसाइटी, पीपल, यू नो, वी जज अदर्स. मतलब सोचो, किसी के पास टाइम नहीं है एक दूसरे को जज करने का, इतना सोचने का, लेकिन हम कुछ भी करने से पहले रुक जाते हैं, नहीं करते हैं. क्यों? कि लोग क्या बोलेंगे. अरे बोलने दो लोगों को. वो कितना अच्छा सॉन्ग है राजेश खन्ना का, लोगों का काम है कहना. कहने दो, उनका काम है. मुझे मूवी का नाम नहीं याद है यार, बताना अगर किसी को याद आए तो. उनका काम है यार, दे हैव टू डू इट, सो लेट देम डू इट. इट्स अ फ्री सोसाइटी. लोग अपना ओपिनियन दे सकते हैं ना, आपको फोर्स नहीं कर सकते कि आप उनके अकॉर्डिंग चलें. सो ठीक है, लेकिन खुद ध्यान दें कि खुद वो गलती ना करें जो दूसरे कर रहे हैं. Don't be judgmental towards others when or don't make opinions about others without knowing the facts about the thing. ठीक है. सो इसके अलावा आई थिंक दिस इज़ द मेजर बिग इशू, क्योंकि मैं ये बात आज इसलिए करने लगी हूँ आप लोगों के साथ, बिकॉज मैं बहुत दिनों से, बहुत टाइम से ये देख रही थी, मतलब नोटिस कर रही हूँ, फील भी करती हूँ कि हमने अपनी लाइफ को खामखा कॉम्प्लिकेट कर लिया है. अपने आप को परेशान करते रहते हैं ये सोच के कि दूसरे क्या कहेंगे. सो मत करो. और वो करने से, कुछ भी ऐसा कुछ करने से पहले सोचो कि, या किसी के बारे में कोई कमेंट करने से पहले सोचो कि हमने तो कमेंट करके चले जाना है, हमने तो कुछ कहकर चले जाना है, लेकिन आपने दूसरे का पर्सपेक्टिव नहीं जाना. आपको नहीं पता उसने क्यों ऐसा किया है ना. तो पहले अक्लमंदी क्या होती है कि सोचो, पहले समझो, पूरे सिनेरियो को देखो, और देन मेक एन ओपिनियन. नॉट सेइंग दैट डोंट फॉर्म एन ओपिनियन, डू फॉर्म एन ओपिनियन, बट फर्स्ट clarify all the things around you. Ensure that you know that you know the facts. Don't frame an opinion without knowing facts. So all said and done, I think आज के लिए बस बहुत करते हैं इतना, and फिर मिलते हैं थोड़े दिनों में. I'll be coming back again. So that's it. Thank you very much for such a patient listening. As usual, please do tell your friends and everybody to subscribe and like to my channel. If you really want me to continue with talking to you people. And दूसरा ये है कि thank you for your comments. I really like them. Like them in the sense कि ये नहीं कि not like, मतलब it's like कि I appreciate everybody giving their views. Thank you. And for your suggestions, continue giving your suggestions, please. And another thing I would like to announce is I would be in a few weeks time, I would be regularly updating and uploading videos, so to the tune of say twice a week, so that we keep in touch. And as soon as I decide when to do things like this regularly, I'll inform everybody in advance. Okay, so thank you, and have a great day. It's still day, morning तो नहीं, I think 12 बजने वाले हैं. It's still going to be afternoon now. So thank you. And many of you must be noticing where I'm sitting, you know. I'm sitting on my roof because अंदर ठंड थी बहुत ज़्यादा. And so I thought why not sit on the roof, and उधर धूप ज़्यादा है
और आँख नहीं खुल रही है. सो आई एम सिटिंग अंडरनीथ this thing. The best part of this whole scenario is कि the sky, the color of the sky is amazing. It's really beautiful blue which I really wanted to showcase, लेकिन वो थोड़ा सा ही दिख रहा है हाँ, जिसको दिख रहा है please enjoy this blue color and have a good day and enjoy yourself. Bye bye.